ماں بیٹی کے ساتھ گینگ ریپ کرنے والے جو ملزمان جو اس میں ملوث تھے عمر فاروق اور منصب، یہ دونوں کو پولیس نے آج دوپہر تک گرفتار کر لیا۔ جب یہ رات کو پتہ چلا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم نے منت بھی مانگی۔ لاہور میں ماں بیٹی سے مبینہ زیادتی کے ملزم پکڑے گئے۔ سی سی پی او لاہور کا کہنا ہے ملزمان کی گرفتاری چیلنج تھا، منت بھی مانگی تھی کہ ہمیں کامیابی مل سکے، کوشش ہے ملزمان کو سزائے موت ہو۔ بہاڑی کی رہائشی خاتون 15 سال کی بیٹی کے ساتھ ٹھوکر نیاز بیگ اڈے پر اتری، صدر جانے کے لیے رکشہ کرایا، رکشہ ڈرائیور ماں بیٹی کو صدر بازار کی بجائے ایل ڈی اے ایونیو لے گیا، ویرانے میں لے جا کر ریپ کیا۔ راہگیر کو دیکھ کر دونوں ملزم رکشہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سی سی پی او نے بتایا گرفتار ملزمان میں سے ایک 2 بار ریپ کیس میں سزا یافتہ ہے۔ واقعے کا مقدمہ درج، پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے، بیانات بھی قلم بند۔ راولپنڈی میں مدرسے کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کرنے والا معلم گرفتار، ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری ضمانت کرائی تھی، پولیس نے دوسرے مقدمے میں دھر لیا۔ طالبہ نے اپنے معلم شاہنواز پر ریپ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ملزم کے خلاف 17 اگست کو تھانہ پیربدائی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ زیادتی کے بڑھتے واقعات کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع، حکومت سے سخت اقدامات کا مطالبہ۔ حکومت نے اسکولوں کی تاحکم ثانی بندش کا فیصلہ واپس لے لیا، اسکول 30 اگست کو کھولنے کی اجازت دے دی، تعلیمی ادارے 100% ویکسینیشن کی شرط پر کھولے جائیں گے، 50% سے زائد حاضری پر پابندی ہوگی، عملے کے ساتھ والدین کے بھی ویکسین سرٹیفکیٹ چیک ہوں گے، جن والدین کی ویکسینیشن ہو چکی ان کے بچے اسکول جا سکیں گے۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا کہنا ہے پرائیویٹ اسکولز کی رجسٹرڈ تنظیمیں حکومتی فیصلوں کے ساتھ ہیں، حکومتی ریٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ سندھ میں سب کچھ کھلا ہے، صرف اسکولز بند ہیں۔ کراچی میں طلبہ، والدین اور اساتذہ سڑکوں پر نکل آئے، تعلیمی اداروں کی مزید بندش نامنظور کے نعرے۔ طلبہ کا کہنا تھا پورے ملک میں بچے پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیوں تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے، حکومت سندھ تعلیم دشمنی بند کرے۔ اساتذہ نے درسگاہوں کا کھلنا ضروری، آن لائن کلاسز کا دشوار قرار دے دیا۔ نصاب تعلیم میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں لائی جائیں، یکساں نصاب پر عمل درآمد صوبائی اشتراک سے جلد مکمل کیا جائے۔ وزیر اعظم کی 6ٹی تا 12ویں نصاب کو سال کے آخر تک حتمی شکل دینے کی ہدایت، کہا معاشرتی مسائل کا بہترین حل سیرت النبی کی تعلیمات میں ہے، تاریخ اسلام کے ساتھ سنہرے اصول بچوں کو پڑھائے اور سمجھائے جائیں۔ پنجشیر پر قبضے کی جنگ، شمالی اتحاد اور طالبان میں لڑائی جاری، طالبان نے مخالفین کے زیر کنٹرول آخری صوبے کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں بغلان کے صوبہ ضلع بنو، پلحصار اور وادی سلح کو مکمل طور پر دشمن سے پاک کر دیا ہے۔ تخار، بدخشاں اور اندراب سمیت پنجشیر کے دروازوں پر طالبان تعینات ہیں، معاملہ مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شمالی اتحاد بھی مذاکرات سے معاملہ حل کرنے کا خواہش مند۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا میں تاخیر پر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، ترجمان طالبان سہیل شاہین نے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا 31 اگست ایک سرخ لکیر تھی، امریکی صدر بائیڈن نے کہا تھا ان کی افواج 31 اگست تک افغانستان سے باہر ہوں گی۔ انخلا میں توسیع افغانستان پر مغربی قبضے کی مدت میں اضافے کے مترادف ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سعودی ہم منصب سے رابطہ، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، کہا ہمیں امید ہے افغان قائدین سیاسی تصفیے کی جانب آگے بڑھیں گے، پرامن افغانستان پورے خطے کے لیے اہم ہے، دنیا افغانستان کی تعمیر نو کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ سویڈش وزیر خارجہ کا شاہ محمود قریشی کا فون، کابل سے انخلا میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے کچھ لوگوں کو افغانستان سے رہائی ملی، افغان طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔
वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया ब्रीफिंग, कहा सी पैक के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश की जा रही है। सी पैक की 40 कंपनियों को पाक फौज ने सिक्योरिटी दी है। चीनियों के साथ पेश आने वाले चारों वाक़यात में कुछ मुल्ज़िमान भी पकड़े हैं। माशी मैदान से एक और अच्छी खबर, OICCI के बिजनेस कॉन्फिडेंट इंडेक्स में पाकिस्तान की मजबूत पोजीशन, इंडेक्स में 9% स्कोर पर मौजूद। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा मई 2020 में पाकिस्तान की पोजीशन -50% थी जो 59% बढ़ी। बैरूनी सरमायाकारों और कारोबारी अफराद के एतमाद में 108% इजाफा हुआ जो -74 से 34% पर आ गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वजारत हाउसिंग को प्लॉटों की अलॉटमेंट में मेरिट यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सहाफ़ियों के 2% प्लॉट्स कोटा के मामले पर वजारत कानून से राय तलब। इजलास में हालिया दिनों जजेस को प्लॉटों की अलॉटमेंट पर गर्मा गर्म बहस। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर कहते हैं जजेस 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं और जब चाहें तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। प्लॉट्स भी ले रहे हैं और तनख्वाहों में मनचाहा इजाफा भी। एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो अपने घर में अपने खर्चे के साथ रहता है। वज़ारत दाखिला के मिनिस्टर हैं, बाकी वज़रा ने बहुत जोर लगाया आप शिफ्ट हो जाएं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, लेकिन आपके वज़ीर आज़म ने, वो अल्लामा साहब ने कहा था ना कि 1000 खौफ हों लेकिन ज़ुबां हो दिल की रफ़ीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक, उस पर चलने वाले हैं। वज़ीर आज़म का फिर सरकारी रिहाइश गाह मुंतकिल होने से इनकार, वफाकी वज़रा की दरख्वास्त रद्द कर दी। बाबर अवान कहते हैं पाकिस्तान को ऐसा वज़ीर आज़म मिला है जो अपने घर में ज़ाती इखराजात से रह रहा है। लाहौर के इलाके मिलत पार्क में करंट लगने से 7 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। मां ने बच्चे को बचाने की कोशिश की लेकिन वो जाँबर न हो सका। वाक़े का मुकदमा हमसाये के खिलाफ दर्ज। मीनार पाकिस्तान पर लड़की से बदसलूकी, सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हुकूक सेल ने भी नोटिस ले लिया। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, मजीद 34 अफराद को धर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 126 हो गई। मजीद 15 मुल्जिमान को शनाख्त रेट के लिए जेल भेज दिया गया। रावी रोड पर रिक्शे में फैमिली से बदतमीजी करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुतासरा लड़की ने मंजर आम पर आने से माजरत कर ली। तफ्तीशी टीम की लड़की को मुल्जिमान की शनाख्त के लिए मनाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन PCB की पीठ थपथपाती। एहसान मानी से काम जारी रखने पर इसरार। 3 साल मजीद काम नहीं कर सकता, चेयरमैन PCB का इनकार। रमीज राजा की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात, क्रिकेट से मुतालिक तजावीज़ दी। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का लंदन में निकाह, होटल के बाहर मुजाहिरा, कौम का पैसा लौटाने और वापस पाकिस्तान जाओ के नारे। लीगी कारकुनों का एक शख्स पर तशद्दुद, पुलिस भी पहुंच गई। बयानात रिकॉर्ड। नवासे की शादी में पाकिस्तान से मफरूर नवाज शरीफ ने भी शिरकत की। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को मुल्क का करप्ट तरीन इदारा करार दे दिया। कहते हैं हर वजारत में सैकड़ों अरब के स्कैंडल हैं लेकिन कोई सवाल नहीं करता। ख्वाजा साद रफीक बोले बेरोजगारी और गुर्बत के साथ बदतमीजी भी बढ़ गई। सियासी क़यादत बदतमीज हो तो आम आदमी से क्या तवक्को रखें। हमारी पार्टी को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है, PDM ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो इलेक्शन कमीशन भी उस वक्त आगे बढ़ेगा जब तमाम जमातों मुत्तफ़िक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर EVM और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं EVM मंजूर नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन चोरी करने का नया मंसूबा है। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इस धोखे को छुपाने का बंदोबस्त है। ज़ेर इल्तवा मुकदमे में किसी नुक्ते पर असखुद नोटिस ले सकता है मगर मौजूदा सूरत हाल में कोई मुकदमा ज़ेर इल्तवा नहीं था। 2 रुकनी बेंच ने बराह रास्त दरख्वास्त वसूल करके नोटिस लिया। बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है।
मौजूदा हफ्ते में हुक्म देने वाला बेंच दस्तयाब ही नहीं। सहाफ़ियों को हिरासत करने के केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। अटॉर्नी जनरल, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार, सदर सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी। रिमार्क्स दिए, आसखुद नोटिस का इख्तियार किस अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है, इस नुक्ते का जायजा लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आबिदाबाद में अरबों रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, माजी की हुकूमतों ने बच्चे बच्चे को मकरूज किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों से आज मुल्क तरक्की कर रहा है। तमाम इलाकों की यकसा तरक्की इमरान खान का विजन है। मुल्क में कोरोना के मजीद 80 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 25,000 से जायद हो गई। 3,772 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7% रही। कोरोना के बायस नामवर फनकार कुर्बान अली नियाजी और डाउ यूनिवर्सिटी की डॉक्टर समरा अली इंतकाल कर गए। ऑपरेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है और हम तो जो कोशिश कर रहे थे जो ऑपरेटर्स से आज ही निकालने को, मगर क्योंकि टाइड लो हो चुकी है तो इसलिए इंशाल्लाह कल 11 बजे ये यहाँ से चला जाएगा। ये यहाँ से जितना है काफ़ी फुट आगे जा चुका है। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने का ऑपरेशन जारी। जहाज को 100 मीटर तक खींच लिया गया। जहाज का इंजन भी स्टार्ट हो गया। ऑपरेशन में क्रेन शिप और टग बोट हिस्सा ले रही हैं। महमूद मौलवी कहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है। उम्मीद है जल्द कामयाब हो जाएंगे। जमैका टेस्ट के चौथे रोज का खेल आज होगा। वेस्ट इंडीज की टीम 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर अपनी इनिंग्स को बढ़ाएगी। तीसरे रोज पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 302 रन बनाकर पहली इनिंग्स डिक्लेयर की थी। फवाद आलम 124 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2107 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 210 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।